Welcome students in my science YouTube channels. In previous video we discussed about the some deficiency disease, just like we discussed about the deficiency of protein carbohydrate. Next slide में या next video में again we discuss about the mineral deficiency disease, and today we delivered the topic next non-communicable disease, means that is the deficiency disease is vitamin deficiency disease. Okay, so vitamin deficiency disease, before we start the topic, don't forget subscribe, share and like the videos and press the icon bell. Okay, we start the vitamin deficiency disease. The first thing, vitamins. You know about them. Vitamin is very essential component for our proper functioning of the body as well as the growth. Okay, there are different type of vitamins are present in different components. दिस इज द रिक्वायर्ड वेरी लेस अमाउंट. बॉडी को जो विटामिन की रिक्वायरमेंट है बहुत कम है, मतलब स्मॉल अमाउंट्स, बट दिस इज द नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग. बॉडी का प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आवश्यक है. दैट इज क्लियर. ओके, तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ vitamins which cause the deficiency. You also read in the class 4th, there are different type of vitamin are given and their sources. In class 5th, that is given the deficiency disease, means a proper amount of the vitamin which are not used through the foods, we cannot take them, they causes the disease. So first we discuss about the some vitamins deficiency disease. First the vitamin we discuss here, vitamin A, vitamin B, vitamin C, and vitamin D. In your syllabus that is given the 4 vitamins. Vitamin A, you know what is the source of vitamin A, class 4th में पढ़े होंगे. विटामिन बी का सोर्स क्या है, what is the source of vitamin C, and what is the source of vitamin D, you also read in the previous classes. So all of you write in my comment box what is the sources of vitamin A, what is the sources of vitamin B, what is sources of vitamin C, and what is the sources of vitamin D. Okay, you see here, they contain the different type of fruits, vegetable here, you see here, and they contain the different type of vitamins. इसमें विटामिन्स भी प्रेजेंट है, मिनरल भी प्रेजेंट होते हैं, विच आर एसेंशियल फॉर आवर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडीज. ओके, सो फर्स्ट वी डिस्क्राइब द डिफिशियंसी डिजीज ऑफ द विटामिन A. Vitamin A deficiency disease. So vitamin A, you know about them, where that is found in which type of sources? That is found in case of milk, that is found in the carrot, that is found in the spinach, vegetables, flesh, egg, etc. Okay.
तो व्हाट इज द डिजीज, यदि विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है कौन सी डिजीज होती है? द डिजीज नोन एज द नाइट ब्लाइंडनेस। इसके थ्रू नाइट ब्लाइंडनेस होता है, मतलब रतौंधी जिसको बोलते हो। वी कैन नॉट सीन ड्यूरिंग द नाइट, रात्रि के समय इनको दिखाई नहीं देता। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इनको नाइट ब्लाइंडनेस हुआ है या मुझे नाइट ब्लाइंडनेस हुआ है? हाउ कैन वी नो अबाउट देम? तो व्हाट इज द सिम्टम्स? देयर आर डिफरेंट सिम्टम्स। फर्स्ट वन, दैट इज द अनएबल टू सी इन द डिम लाइट्स। डिम लाइट में वो दिखाई नहीं देगा, मतलब कोई भी चीज़ आपको हल्की लाइट है, धीमा लाइट है, तो आप वी कैन नॉट see the any substance or material in dim lights. डलनेस इन आइज, जो आई की कलर होती है वो डलनेस हो जाती है। ठीक है, और वी कैन नॉट सी द इजली आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस। ड्राई एंड स्केली स्किन, स्किन भी बिल्कुल ड्राई हो जाती है और स्केली, रूखा हो जाता है। So this is the different symptoms. On the basis of them we identified the night blindness disease. तो नाइट ब्लाइंडेड डिजीज किसके थ्रू होता है? विटामिन ए डिफिशियंसी के थ्रू। विटामिन ए की कमी के कारण यह नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और विटामिन ए कहाँ मिलता है? कैरेट में, मिल्क में, स्पाइनेच में, मैंगो में, ओके, फ्लैश में, मैनी मटेरियल्स दे कंटेन द विटामिन ए। क्लियर? जस्ट लाइक यू सी हियर, डलनेस इन आईज, जो आई का कलर है वो डलनेस हो गया है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ विटामिन डी डिफिशियंसी। नेक्स्ट विटामिन, दैट इज द विटामिन बी डिफिशियंसी डिजीज। विटामिन बी दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ राइस large amount, otherwise that is also present in the vegetables, fruits. Okay, so what is the disease causes through the vitamin B deficiency? That is the beriberi। इसके थ्रू जो डिजीज होती है उसका नाम है बेरीबेरी डिजीज। तो व्हाट इज द सिम्टम्स? इसके सिम्टम्स क्या है? So what is the symptoms of the beriberi? बेरी किसकी डिफिशियंसी हो रहा है? विटामिन बी की कमी कारण। इसका सिम्टम्स क्या अपीयर होते हैं बॉडी में? फर्स्ट वन, एक्सट्रीम वीकनेस, बॉडी बिल्कुल वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। पैरालिसिस ऑफ द बॉडी पार्ट्स, जो बॉडी पार्ट्स हैं बिल्कुल पैरालिसिस, बिल्कुल मीन्स लूज हो जाना, मीन्स प्रॉपर फंक्शनिंग ना करना। ठीक है, पैरालाइज्ड हो जाना, दैट इज क्लियर। सो दिस द सिम्टम ऑफ बेरीबेरी। You see some symptoms that is appear on the skin also. There is the red color, the small patches are present on the skin, you see here. That is also causes the vitamin B deficiency, means that is showing the beriberi disease. क्लियर हो गया ये? थर्ड आया विटामिन सी डिफिशियंसी डिजीज। विटामिन सी यू नो अबाउट देम, किसमें मिलता है? नॉर्मल दैट इज फाउंड इन केस ऑफ शावर फ्रूट्स, जो खट्टे फल हो उसमें सबसे ज़्यादा मिलता है, जस्ट लाइक इन केस ऑफ लेमन, ऑरेंज। ओके, तो व्हाट इज द डिफिशियंसी कॉजेज द डिजीज? विटामिन सी के कारण कौन सा डिजीज होता है? द डिजीज नोन एज स्कर्वी डिजीज। ठीक है, इसके थ्रू कौन सा डिजीज हो रहा है? स्कर्वी डिजीज होता है। तो व्हाट इज द सिम्टम ऑफ स्कर्वी?
स्कर्वी का सिम्टम क्या है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि उसको स्कर्वी डिजीज़ हुआ है। तो सिम्टम क्या है इसके, स्वॉलन एंड ब्लीडिंग गम्स, जो गम्स होते हैं जिसमें टीथ आपका प्रेजेंट है, जिसमें फिट होता है वो गम्स बोलते हैं, वो स्वॉलन हो जाता है, सूज जाता है, फूल जाता है। एंड ब्लीडिंग गम्स, और गम्स से ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लड निकलता है। जैसे आप सुबह टीथ ब्रश कर रहे हो तो उसके कार्ड थोड़ा सा टच होने से ब्लड बाहर निकलने लगता है। सेकेंड सिम्टम है लूज टीथ, जो टीथ है गिरने लगते हैं। ओके। पेन इन जॉइंट्स, बॉडी पार्ट के जितने भी जॉइंट्स है ड्यू टू विटामिन डी सी डिफिशियंसी, दैट इज द पेन अकर्स। ठीक है, जॉइंट में पेन होने लगता है, इसलिए विटामिन सी रेगुलरली यूज करना चाहिए। दे आर प्रेजेंट इन द लेमन, तो लेमन का यूज़ रेगुलर करना चाहिए आपको, कुछ ही पार्ट, लेकिन रेगुलर आप वाटर में यूज़ करिए, इसको पीने में यूज़ करिए, जिससे आपकी प्रिवेंट फ्रॉम द स्कर्वी डिजीज। जस्ट लाइक यू सी वन डायग्राम ऑफ गिवन हियर, we show the scurvy disease. You see here, there is the gums, these gums are swollen। ठीक है, और यहाँ से ये रेड कलर जो दिख रहा है ये ब्लीडिंग है, मीन्स दैट इज द शोइंग ब्लीडिंग हियर। सो क्यों हो रहा है, दिस द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट है विटामिन डी डिफिशियंसी डिजीज। विटामिन डी यू नो अबाउट देम, कहाँ पर मिलता है, या फ्लैश में मिलता है, ठीक है, एग में मिलता है, सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो सनलाइट में मिलता है। जो सनलाइट सुबह के 8 से 10 बजे का जो टाइम होता है सनलाइट का, दे कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ विटामिन डी, और ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाता है। जैसे लाइक अभी आप देख रहे हो कोरोना वायरस जो चल रहा है, इसमें भी बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए 2 आवर सनलाइट में, जो पेशेंट है उनको सनलाइट में बैठाया जाता है 2 घंटे के लिए। ठीक है, इससे क्या होता है, बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होती है। दैट इज क्लियर। तो ड्यू टू द विटामिन डी डिफिशियंसी द कॉजेज डिजीज इज, डिजीज का नाम है रिकेट्स। रिकेट्स मीन्स सूखा रोग जिसको बोलते हो। ओके, व्हाट इज द सिम्टम्स, इसका सिम्टम्स क्या शो होता है, बॉडी में क्या शो करता है, जिसके बेस पे कहेंगे कि इसको विटामिन डी की कमी है। फर्स्ट वन, सॉफ्ट एंड वीक बोन्स, जो बोन्स हो जाता है बिल्कुल सॉफ्ट एंड वीक हो जाता है, फ्रेगाइल हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। बो शेप्ड लेग्स, उसके जो पैर है बिल्कुल टेढ़े मेढ़े होते हैं, बो शेप्ड हो जाता है, धनुषाकार जिसको बोलते हैं। ओके, सो दिस द डिफरेंट सिम्टम एंड डिजीज ऑफ द विटामिन डी। दैट इज क्लियर। तो विटामिन डी डिफिशियंसी के कारण कौन सा डिजीज होता है, रिकेट्स होता है। सिम्टम्स क्या है इसके, सॉफ्ट एंड वीक बोन्स होते हैं, एंड सेकेंड है बो शेप्ड legs। Clear? You see in the diagram that is showing the bow shaped legs, you are as easily identify the rickets disease। You see here, this is the normal legs, human bodies, this is the bow shaped rickets। ठीक है, ये आपको शो कर रहा है डिजीज, दिस द रिकेट डिजीज। लेग का देखिए और इस लेग में देखिए, ये बिल्कुल टेढ़ा हो गया है, ठीक है, दैट इज शोइंग द विटामिन डी डिफिशियंसी डिजीज। क्लियर। विटामिन बी
का साइंटिफिक जो नेम है वो उसको हम थायमिन भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज द थायमिन. एंड दिस द नीडेड जो थायमिन है, दिस इज द नीडेड प्रिवेंट अ डिजीज कॉल्ड बेरी. और विटामिन बी जिसके द्वारा वेरी डिजीज हो रहा है, नॉर्मली दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन बी आर प्रेजेंट. उसमें विटामिन बी जो वेरी डिजीज कॉज कर रहा है उस विटामिन का नाम है विटामिन B1. ठीक है, विटामिन B1 कहते हैं इसको, जिससे वेरी होता है. और इसका साइंटिफिक नेम है थायमिन. दैट इज क्लियर. ओके. नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ डिफिशियंसी डिजीज. हाउ कैन दे आर प्रिवेंट फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ डिफिशियंसी. जो अभी डिफरेंट टाइप के डिफिशियंसी की डिजीज़ की बात कर रहे थे, कई तरह की डिफिशियंसी डिजीज़ हो रही है, उससे कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे बचाव करेंगे. तो फर्स्ट थिंग, वन शुड टेक अ बैलेंस डाइट कंटेनिंग ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, हमेशा बैलेंस डाइट यूज़ कीजिए जिसमें ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट. ठीक है, एवरीवन नो अबाउट द व्हाट इज द बैलेंस डाइट. If you know, then you write in comment box again. What is the balanced diet? That is clear? उसके थ्रू में मुझे पता चल जाएगा कितने लोग को पता है what is the balanced diet. तो क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट. कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि जब हम फूड खाएं तो दे कंटेन द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट ए सफिशिएंट अमाउंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ. क्लियर. सेकेंड, वन मस्ट फॉलो गुड food practices and habits. One must follow good food practices. मतलब हमको अच्छे और क्वालिटी के जो फूड हो उसको यूज़ करना चाहिए और हैबिटेट में रेगुलरली उसको ले आना है. ठीक है, एक नहीं, ऐसा नहीं कि एक दिन बहुत अच्छा खाया दूसरे दिन नहीं खा रहे हैं. आप सुबह केवल दाल चावल खा रहे हैं, सब्ज़ी नहीं खा रहे हैं, पराठा नहीं खा रहे हैं, रोटियां नहीं खा रहे हैं, मिल्क दूध नहीं पी रहे हैं. आप लोग के लिए तो बहुत नेसेसरी कंपोनेंट है मिल्क या मिल्क का प्रोडक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए. ठीक है, दिस द यू नो अबाउट द मिल्क दैट कंटेन द प्रोटीन्स. प्रोटीन होता है जो बॉडी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है. ओके, तो मिल्क आप ज़रूर पीजिएगा रेगुलर. ओके. And third point, children must be given adequate amount of milk product and additional food items like juices, soft boiled rice, porridge, etc. ठीक है, अभी जो बता रहे थे कि बच्चों को मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करना चाहिए. एज वेल एज दैट इज आल्सो यूज़ द जूसेस, फ्रूट जूस यूज़ करना चाहिए. सॉफ्ट बॉयल राइस, चावल बॉयल करने के बाद जो उसमें से लिक्विड निकलता है, मॉड जिसको बोलते हैं कॉमनली, दैट इज मॉड बोला जाता है गांव में. ठीक है, मतलब जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको पसा लिया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है, पीने के लिए बच्चों को दिया जाता है. बिकॉज दे कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, जो प्रिवेंट करता है डिफरेंट टाइप से डिजीज से. दैट इज क्लियर. हाउ कैन दे प्रिवेंट फ्रॉम द डिफिशियंसी डिजीज. क्लियर हो गया. Thank you for watching the videos.